وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی ڈیووس میں ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سے متعلق بات چیت، دونوں رہنماؤں کا برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ عمران خان پارلیمنٹ میں واپس نہیں آنا چاہتے، ان کی سیاست کا مقصد ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنا ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی لندن کی ہیتھرو ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے 3 نام پارلیمانی کمیٹی کے لیے اسپیکر کو بھجوا دیے، ملک احمد خان، سید حسن مرتضی اور ندیم کامران شامل۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی، اگر دھاندلی کی ہوتی تو میئر بنانے کے لیے واضح اکثریت حاصل کرتے۔ بعض علاقوں میں دوبارہ گنتی جاری ہے، کراچی کی بہتری کے لیے دیگر جماعتوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، صوبائی وزیر سعید غنی۔ روس سے سستے تیل اور گیس کی خریداری کے حوالے سے اہم پیش رفت، روسی وزیر توانائی کا دورہ پاکستان، ادائیگیوں اور شپنگ کا طریقہ کار طے کیا جائے گا، پاکستان کو سالانہ $2 ارب زر مبادلہ کی بچت ہوگی، ریلوے، تعلیم اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکہ کا پاکستان کی معیشت مضبوط کرنے میں تعاون کا عزم، پاکستان کی IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت جاری، امید ہے کہ مذاکرات سے بہتری آئے گی، جہاں ضرورت پڑی ضرور مدد کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس۔ ایران سرحد کے قریب پنجگور میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 4 جوان شہید، دہشت گردوں نے ایرانی سرزمین سے سرحد پر پیٹرولنگ کرنے والے جوانوں کو نشانہ بنایا، پاکستان کا ایرانی حکام سے دہشت گردوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ، وزیر اعظم اور صدر مملکت کا اظہار افسوس۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اور 6 ہتھ کنڈے، کشمیریوں کی اپنی زمینوں سے جبری بے دخلی، کشمیری عوام بھارت کے مذموم عزائم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارت میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں سخت مصائب کا شکار، علی گڑھ میں گوشت کی خریداری پر مسلمانوں کے خلاف پرتشدد جھڑپیں، فرقہ وارانہ تشدد میں متعدد مسلمان شدید زخمی، ممبئی میں بی جے پی کے رکن اسمبلی نتیش رانا کی قیادت میں انتہا پسندوں نے مسجد پر دھاوا بول دیا، نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا آئندہ ماہ سے مستعفی ہونے کا اعلان، عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ، اگلے عام انتخابات میں حصہ نہیں لوں گی، سیاست ایک مشکل کام ہے اور اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن۔ افغانستان میں شدید سردی سے جاں بحق افراد کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی، 75,000 سے زائد جانور ہلاک، افغانستان کی نصف سے زائد آبادی کو موسم سرما میں بھوک کا سامنا، 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار، بین الاقوامی امدادی اداروں کے اعداد و شمار۔ ملک میں شدید سردی کا راج، کلات، پشین، ڈیرہ بگٹی شہر اور گرد و نواح میں برف باری اور بارش، اسلام آباد سمیت بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ یونان کے اسٹیفانوس سٹسیپاس، روس کے ڈینیل میدویدیو اور کینیڈا کے ڈینس شاپووالوو کی تیسرے مرحلے میں رسائی۔ آسٹریلین اوپن خواتین سنگلز، عالمی نمبر 1 پولینڈ کی ایگا شوائٹک کی پیش قدمی جاری، تیسرے مرحلے میں پہنچ گئی، یونان کی ماریا سکاری، امریکہ کی کوکو گاف، جیسیکا پیگولا، میڈیسن کینز، بیلاروس کی وکٹوریا آزارینکا اور قازقستان کی ایلینا رائباکینا بھی اگلے مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ انٹارکٹا کی بلند ترین چوٹی پر دوڑ کر چڑھنے کا ورلڈ ریکارڈ، برازیل کی فرنانڈا میسیل کی ماؤنٹ ونسن پر الٹرا میراتھن،
4,892 मीटर चोटी दौड़कर सर करने वाली पहली कोपैमा बन गईं। 42 साला मैसियल एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में अर्जेंटीना की माउंट एकोनकागुआ और तंजानिया की माउंट किलिमंजारो भी सर कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान डेवोस में मुलाकात हुई है। अपने एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सऊदी वजीर खारजा से होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तमाम शोबों में ताउन में इजाफे पर बातचीत हुई। इस मौके पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से सऊदी अरब के तवील मुद्दती ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और फिनलैंड के वजीर खारजा के दरमियान भी डेवोस में मुलाकात हुई। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात, आलमी, इलाकाई और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने जनीवा में आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ ताउन पर फिनलैंड का शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसका कोई और एजेंडा नहीं है मासवाए इसके कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, ताकि मौशी इस्तेहकाम ना आए और खुदा न खासा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट। अगर ये इक़्तिदार में है तो मुल्क रहना चाहिए, अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो 3 टुकड़ों में तकसीम होना चाहिए। वो लेके हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये 60 दिन में हो रहे, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, 90 दिन में हो, आगे जाने हैं तो आगे चले जाएं, लेकिन हम तैयार हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की गई है। पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान शामिल हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भी मुशावरत के लिए नाम ज़ेर गौर हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने निगरान वज़ीर आला के नामों पर इत्तफाक न होने के बायस मामला स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवा दिया था। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात का पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। अगर हमने धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 नशिस्तें ले लेते। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि बाज़ हल्कों में दोबारा गिनती जारी है। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से खातून अफसर पर हमला किया गया। जमात इस्लामी का रवैया मुनासिब नहीं है। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर नोटिस लिया है। हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे के तहत मुल्क में मजहब की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की गई है और इस मिशन को पूरा करने के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया। वो पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। पेशावर में जमीयत तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत साबिका हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी अक़दार के खात्मे और मगरबी कल्चर मुसल्लत करने के लिए नौजवान नस्ल को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि PTI से नौजवानों को गालियों के अलावा कुछ नहीं मिला। इमरान खान ने हमारी नई नस्ल की अखलाकियात को ख़त्म कर दिया है। तमाशा और है, हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन है। नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया गया, नई नस्ल को आवारा कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मगरबी कल्चर ज़दा टोले ने हमेशा मजहबी लोगों और मदारस के बारे में गलत तासुर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम इस साजिश के खिलाफ रोज़ अव्वल से जद्दोजहद कर रही है। ये बात मुझे कही गई है, बिलमुशाफा कही गई है कि पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं और मजहब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इमरान खान से ज़्यादा मुनासिब और आदमी नहीं था। इसलिए हमने ये सुबह उनके हवाले किया है। अब इस जहनीत का मुकाबला करना है या नहीं करना चाहिए।
अपने नौजवान को तक रसाई करें, उनको कन्विंस करें, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनकी इस्लाह करें, ये आपकी अब जिम्मेदारी बनती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उलमाए कराम की मुश्तरका नसाब के लिए काविशें काबिल कदर हैं। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को महारतों का हुसूल भी ज़रूरी है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। रूसी वजीर तवानाई पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसमें अदायगियों और शिपिंग के तरीक़ाकार तय किया जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें रूस से कम कीमत पर तेल की खरीदारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील हमारे साथ शेयर कर रहे हैं राहील अंसार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तजारत, इक्तिसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन के 8वें इजलास के दौरान तेल और गैस, कस्टम, रेलवे, तालीम, ज़राअत और एविएशन समेत मुख्तलिफ शोबों के दरमियान तजारत के फरोग पर बातचीत 3 रोज तक जारी रहेगी। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डिवीजन डॉक्टर काज़म नियाज ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तकाबली बर्तरी से फायदा उठाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। We see huge potential of benefiting from each other's comparative advantages. The establishment of this Intergovernmental Commission is a very significant event in our bilateral relations. We believe that the consensus that would be reached during the session would yield tangible results and will help boost bilateral cooperation in various fields like energy, education, science and technology, banking, commerce and trade, agriculture and industry. रूस के डिप्टी सेक्रेटरी तजारत इसराफील अलीजादे ने कहा कि दोनों मईशतों के दरमियान बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, जिन्हें मजीद तलाश करने की जरूरत है। Where we had incredibly fruitful discussions and eventually we found a consensus in every sector of economy, which was again shown and seen in the final draft of the protocol. The results of the last IGC indeed show that the work that our countries have in different sectors and spheres of economy are deepening and there is great potential. रूस से सस्ती तवानाई मिलने की सूरत में पाकिस्तान को सालाना $2 अरब ज़र मुबादला की बचत हो सकेगी। इजलास के दौरान अदायगियों और शिपिंग का तरीकाकार भी तय किया जाएगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत करने में ताउन के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान की IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के नतीजे में बेहतरी आएगी, ताहम जहां हमारी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी जरूर मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इदारा जाती सतह पर बातचीत होती रहती है और अक्सर तौर पर मुज़ाकरात अमरीकी महकमा खजाना और पाकिस्तानी वजारत खजाना के दरमियान होते हैं। और नाज़रीन, तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, इक्तिसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन का 8वां इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए दावोस में हैं। वज़ीर खारजा ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ खुराक, मईशत और आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा 25 नवंबर से ताशकंद का दौरा कर रहे हैं, जहां वो ECO काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पंजगोर में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। दहशतगर्दी में ईरान सरहद इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान और ईरान करीबी हमसाए हैं और पाकिस्तान की तशवीश से ईरान को आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज अफवाज ने मुख्तलिफ वाक़यात में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और हजारों कश्मीरियों को भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बासलाहियत और पढ़े लिखे नौजवानों को सियासी अमल में लाने का अज़्म। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के हल्का 93 राजनपुर 1 से नौजवान अम्मार लगारी को पार्टी टिकट देने का फैसला किया है। ये फैसला डेरा गाजी खान में उनकी ज़राअत के शोबे और अवामी बहबूद के लिए काम की बुनियाद पर किया गया है। अम्मार लगारी ने बरतानिया से आला तालीम हासिल करने के बाद डेरा गाजी खान में ज़राअत के शोबे में माहौल दोस्त, जदीद और तख्लीकी रुझानात मुतारिफ करवाए और राजनपुर में अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर काम किया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बासलाहियत और पढ़े लिखे नौजवानों को सियासी अमल में आगे लाने की सोच के तहत अम्मार लगारी को टिकट देने का फैसला किया है। जाफर खान लगारी की गुज़िश्ता माह वफात के बाद इस हल्के की नशिस्त खाली हुई थी। और मुल्क की सबसे बड़ी फसल गंदम को यूरिया खाद की अशद जरूरत के वक्त खाद महंगी और नायाब हो चुकी है। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया वजीर आजम किसान पैकेज के तहत किसानों को दी जाने वाली रियायत के मुताबिक यूरिया खाद किसानों को फराहम करने में नाकाम है। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के जिला रहीमरा खान में इस साल 7 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त है, जिसके लिए 15 लाख बोरी खाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से किसान पैकेज के तहत काश्तकारों को खाद पर सब्सिडी देने के बावजूद किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। गंदम की फसल को इस वक्त खाद की ज़रूरत है और रहीमरा खान में यूरिया खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत से खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ज़री पैकेज अगर उस पर अमल दरामद करा लिया जाता तो काश्तकारों की फसल बेहतर हो जाती, जिससे मुल्क के अंदर गंदम का बहरान जो था वो ख़त्म हो जाना था। की फसल बिल्कुल तैयारी के माहौल में है। इस वक्त गंदम को यूरिया खाद की ज़रूरत है जो कि अवेलेबल नहीं है। ज़िले में इस वक्त गंदम की फसल को यूरिया खाद की ज़रूरत है। गंदम की बढ़ोतरी के वक्त फसल को खाद ना मिलने से इसका सिट्टा कमज़ोर और छोटा रह जाएगा। गंदम का दाना बहुत कम और बारीक बनेगा, जबकि फसल को बर वक्त खाद मिलने से ना सिर्फ सिट्टा बढ़ेगा बल्कि गंदम की पैदावार में 15 से 20 मन फी एकड़ इजाफा होगा। गंदम की बढ़ोतरी के वक्त खाद कंपनियों की तरफ से यूरिया खाद की कीमत में 190 रुपये इजाफे के साथ खाद डीलर यूरिया खाद 2440 रुपये की बजाय 3000 रुपये में फरोख्त इस शर्त पर कर रहे हैं कि काश्तकार यूरिया के साथ एक बोरी DAP की भी खरीदें। हर डीलर ये कहता कि जिहड़ियां फर्टिलाइजर कंपनियां ने वो सानू दिंदियां एक DAP ते एक यूरिया, जदों कि जिमीदार नूं DAP की जरूरत नहीं है। इस वक्त किसान को खाद की बर वक्त और वाफर मकदार में फराहमी को यकीनी बनाकर न सिर्फ गंदम का पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है बल्कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गंदम की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुआदला की भी बचत हो सकती है। जनूबी पंजाब के जिला लोधरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,16,000 खवातीन को 7,000 रुपए की रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये अदायगियां इस साल जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए जारी हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। ज़िला लोधरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 1,16,000 खवातीन को 7,000 रुपये की रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला भर के मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की किस्त जनवरी से मार्च तक अदायगी की जा रही है। मुस्तहिक़ खवातीन अपनी रकम ATM के ज़रिए भी निकलवा सकती हैं। हम लोग उनकी टीम सारी की सारी मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ रिटेलर शॉप पे जा रही हैं और ATMs पे चेक कर रही हैं और जो भी हमारे पास कोई शिकायत आती है हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अगर आपको कोई भी शख्स कटौती करता हुआ पाया जाए तो खातून के लिए वो हमें फौरी तौर पर बताएं ताकि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ज़िला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को 7,000 रुपये की रकम की अदायगी के लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील दुनियापुर में 30, तहसील लोधरा में 30 जबकि करोड़ पक्का में 30 सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर तहसील लोधरा की 49,000 खवातीन, तहसील दुनियापुर की 28,000 और तहसील करोड़ पक्का की 36,000 मुस्तहिक़ खवातीन को किस्त की अदायगी की जा रही है। इनकम सपोर्ट के हम लोग ट्रांच चला रहे हैं और यहाँ जितने भी खवातीन आते हैं ना, हम लोग उनके जितने भी अमाउंट होती है हम लोग अपने अच्छे तरीके से उनको लाइन अप किया जाता है और उनको पेमेंट उनकी बाकायदगी से अदा की जाती है। पैसे गिनना यहाँ 7,000 में मिले 7,000 मेरे बालन वजीफा है, कोई कटौती कहने कोई चीज़ कहने सहूलत है बिल्कुल। मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह के किस्त के साथ बच्चों का तलीमी वजीफा भी दिया जा रहा है। लड़के के लिए 1,500 रुपये और लड़की के लिए 2,000 रुपये की रकम दी जा रही है। मुस्तहिक़ खवातीन का किस्त की अदायगी 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाक की हुकूमत का एक ऐसा फलाही प्रोग्राम है जो मुल्क भर के इंतहाई पसमानदा घरानों की मुस्तहिक़ और नादार खवातीन को समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। चीन से दरामद की गई माल गाड़ियों के 70 जदीद तरीन बोगियां कराची बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। मालबरदार गाड़ियां पाकिस्तान रेलवे ने वसूल की। रवां साल मार्च में ऐसी मजीद 130 बोगियां रेलवे सिस्टम में शामिल हो जाएंगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहदे के तहत बाकी 620 बोगियां पाकिस्तान में बनेंगी। इनकी शमूलियत से रेलवे के जरिए माल की तरसील के रुझान में इजाफा होगा। नई बोगियों से रेलवे की आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से जायद का इजाफा होगा।
वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक से स्वीडिश सफीर हेनरिक पेरसन की क़यादत में आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान में IT और टेलीकॉम सेक्टर में इक़दामात से वफ़द को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने टैलेंट, अक्सरियती नौजवान आबादी और बैरूनी सरमायाकारी का मरकज़ है। IT टेलीकॉम शोबों में स्वीडन कंपनीज के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। इस मौके पर स्वीडिश वफ़द ने वजारत IT और टेलीकॉम के मुख्तलिफ मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मसनूई जहानत के इस्तेमाल से माहौलियाती तब्दीलियों और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाया जा सकता है। चीनी सिफारतखाने के चार्ज डी अफेयर्स पैंग चिंगसो और वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सयाहत और खेल ऑन चौधरी की मुलाकात हुई है। चीन के सिफारतखाने में होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा सयाहत के फ़रोग़ पर बातचीत की गई है। साल 2023 को दोनों ममालिक ने चीन पाकिस्तान सयाहत के तबादले के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ऑन चौधरी ने इस साल 22 जनवरी से शुरू होने वाले चीनी नए साल के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने जद्दा में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि जल्द डिजिटल मुख्तारनामे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिससे समंदर पार पाकिस्तानियों को पेश आने वाले मसाइल को बरवक्त हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के गहरे दोस्ताना मरासिम हैं और यहाँ काम करने वाले मेहनत करके पाकिस्तान को ज़र मुबादला फराहम कर रहे हैं, जो हमारी मईशत की अशद ज़रूरत है। उधर बलोचिस्तान में पंजगोर के करीब पाकिस्तान ईरान सरहद के चकाब सेक्टर में दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने ईरानी इलाके से सरहद पर पेट्रोलिंग करने वाले जवानों के काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तवक्को रखते हैं कि ईरान इस बात को यकीनी बनाएगा कि उसकी सरजमीन सरहद पार हमलों में इस्तेमाल न हो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और हमले में 4 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा करते हुए शोहदा की खिदमात, वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है और उनकी दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पंजगोर हमले में 4 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर इत्तलात ने शहीद एहलकारों के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्द पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में रेशा दबानियां जारी हैं। मुसलमानों और दलितों को उनकी जायदादों से महरूम किया जाने लगा है। हिंदू इंतहा पसंदों ने अलीगढ़ और मुंबई में मुसलमानों पर शदीद तशद्दुद किया। तफसील अब्दुल्ला शाह से जानते हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने और जद्दोजहद आज़ादी को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम हरबे आजमा रही है। अब भारत सरकार के इशारे पर मकबूजावादी के मुसलमानों और दलितों को उनकी जायदाद से बेदखल किया जा रहा है। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर से मुसलमानों और दलितों को बेदखल करके RSS की कॉलोनियां बनाने का इरादा रखती है। इस पस मंजर में भारतीय फौज की जानब से जम्मू में नई हाउसिंग कॉलोनी का ऐलान भी किया जा चुका है। दूसरी जानब भारत में बसने वाले मुसलमान व दीगर अक़लियतें भी सख्त मसाइब का शिकार हैं। अलीगढ़ में गोश्त की खरीदारी को लेकर हिंदू इंतहा पसंदों ने हंगामा किया, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ मुतशद्दद झड़पें शुरू हो गईं। फिरका वाराना तशद्दुद में मुतअद्दिद मुसलमान शदीद जख्मी हुए हैं। तशद्दुद करने वाले इंतहा पसंदों को योगी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसके साथ मुंबई के इलाके घाटकों में बीजेपी के रुकने असम्बली नतीश राणा की क़यादत में इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया और नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ जय श्री राम के नारे बुलंद किए। इसके साथ साथ भारत में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी कानून साजियों का सिलसिला भी जारी है। जमीयत उलमा हिंद की जानब से 5 भारतीय रियासतों में काले कानून लव जिहाद एक्ट के नफाज को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर 30 जनवरी को समाअत होगी। अब्दुल्ला शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
हुर्रियत क़यादत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज इंतजामिया की तरफ से मुसलमानों की ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे की शदीद मजम्मत की है। KMS के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों से बेदखली की मुहिम का मकसद इस अराज़ी पर भारतीय हिंदुओं को बसाकर जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को तब्दील करना और कश्मीरी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। हुर्रियत रहनुमाओं ने सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के ग्रुप्स और माशरे के दीगर तबकों पर जोर दिया है कि वो भारत के मजमूम अज़ाइम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। भारतीय फौजियों, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने राजौरी, पुंछ और रियासी के अजला में फौजियों ने आज मुसलसल 18वें रोज भी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रखा। फौजियों ने श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, रामबल और दीगर अजला में भी तलाशी की कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों की वजह से पूरे मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में एक किताब की तकरीब रुनुमाई के दौरान गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि तनाज़ कश्मीर उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जबकि भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए कई दहाइयों से जारी तनाज़ कश्मीर का कोई हकीकी हल तलाश नहीं कर लेता। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा है कि सूबे पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के माबैन तय पाने वाला सिस्टर प्रोविंसेस माहिदा दोनों मुल्कों के शहरों की सतह पर इस तरह के माहिदों के लिए एक नमूना फराहम करता है। इन ख्यालात का इजहार सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने कैलिफोर्निया के शहर इरवाइन की पाकिस्तानी निर्यात मेयर फरह खान से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के सूबों के माबैन ताउन के नतीजे में अवामी सतह पर तबादलों के फरोग में भी मदद मिलेगी। फरह खान के शहर इरवाइन स्टार्ट अप बिजनेस, मजबूत मईशत और रोजगार के लिए तरक्की करती हुई मार्केट के हवाले से अमेरिका के बेहतरीन शहरों में शुमार किया जाता है। और नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल की बात करें तो न्यूजीलैंड के वजीर आज़म ने आइंदा माह से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो अगले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नेपियर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हुए वो आबदीदा हो गईं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के तौर पर 7 फरवरी मेरा आखिरी दिन होगा और 14 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में मैं हिस्सा नहीं लूंगी। 42 साल आर्डन ने कहा कि सियासत एक मुश्किल काम है और मैं अब आराम करना चाहती हूँ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मेरी लेबर पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। जेसिंडा आर्डन ने 2017 में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुई थी और इस दौरान उन्होंने खुद को न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर खुद को मनवाया। 2019 में 2 मसाजिद पर हमले हुए जिसमें 51 मुसलमानों की शहादत का वाक़या आया। उस पर भी उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया, उससे दुनिया भर में मुकीम मुसलमान उनके गर्विदा हो गए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए रूस की शर्त नाकाबिले कबूल है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मॉस्को, यूक्रेन और अमरीका समेत मगरिब को मुज़ाकरात से पहलू तही का कसूरवार ठहरा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए रूस ने जो शराइत रखी हैं वो काबिल कबूल नहीं। मॉस्को का कहना है कि कीव अपने गंवाए हुए इलाकों से दस्तबरदार हो जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को $25 अरब मालियत का असलहा फराहम कर चुका है और आने वाले दिनों में असलहे के नए इमदादी पैकेज का भी ऐलान करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तेल की कंपनियों पर इल्जाम लगाया है कि वो ग्लोबल वार्मिंग में किरदार के बारे में झूठ बोल रही है, उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। देवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 70 की दहाई में कोयला पैदा करने वाले ममालिक इस बात से पूरी तरह आगाह थे कि उनकी बुनियादी मसनूआत हमारे सैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। तंबाकू की सनत की तरह इसके जिम्मेदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान आबो हवा, तिजारत और टेक्नोलॉजी से लेकर इंसानी हकूक और तमाम किस्म के तनाज़ात और तसादुम की रोकथाम के लिए बामकसद बातचीत जरूरी है। उधर इसराइल की जानिब से फलस्तीन के निहत्ते शहरियों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। सिहूनी कुव्वतों ने मगरबी किनारे के शुमाल में नाबलुस शहर में छापों के दौरान 8 फलस्तीनी शहरियों को जख्मी कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली फौजियों ने यहूदी आबादकारों के लिए मजहबी रसूमात की अदायगी आसान बनाने की गर्ज से मशरकी नाबलुस में छापा मारा। इस सूरत हाल पर फलस्तीनी नौजवानों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़प हुई, जिस पर इसराइली फौजियों ने असली और धाती गोलियों समेत आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया।
فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں 8 فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ 35 فلسطینی آنسو گیس کے متاثر ہوئے۔ اقوام متحدہ کی ڈیپٹی سیکریٹری جنرل آمنہ محمد کی سربراہی میں وفد نے کابل میں افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی سے ملاقات کی ہے اور خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں پر عائد پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات میں آمنہ محمد نے مطالبہ کیا کہ افغان عبوری حکومت خواتین پر عائد پابندیوں کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے شکوہ کیا کہ عالمی برادری نے طالبان رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے خارج کرنے، اقوام متحدہ میں طالبان حکومت کو مستقل نمائندہ مقرر کرنے اور افغان عبوری حکومت کو تسلیم کرنے سمیت دیگر امور میں تعاون نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کی ڈیپٹی جنرل سیکریٹری آمنہ محمد نے گزشتہ روز افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور افغان مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ ڈاکٹر عبداللہ سے بھی ملاقاتیں کیں، جس میں خواتین کی تعلیم اور کام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں شدید سردی سے جاں بحق افراد کی تعداد 70 سے بڑھ چکی ہے جبکہ 75,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزارت کے مطابق افغانستان کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ صوبہ گوڑ سمیت بعض علاقوں میں پارہ -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ زیادہ تر ہلاکتیں صوبہ بادغیس، غور، غزنی، نمروز، پکتیکا، ہرات، قندھار اور فاریاب میں ہوئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حکام نے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ سردی کی حالیہ لہر میں 70,000 کے قریب مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں کئی روز گزرنے کے باوجود بھی نہیں کھولی جا سکیں، جس کی وجہ سے افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے اور ان کو امداد پہنچانا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اور ملکی صورتحال کی بات کریں تو بلوچستان کے علاقے زیارت میں شدید برفباری کے باعث مسافر گاڑیوں میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ زیارت میں برفباری کا گزشتہ رات شروع ہوا جو تاحال جاری ہے۔ زیارت پولیس اور لیویز کی جانب سے مختلف شاہراہوں اور سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے اور مسافروں کی مدد کے لیے مشینری ہائی الرٹ ہے جبکہ سڑک پر نمک کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف پٹیشن واپس لینے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے استدعا کی کہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے، اس لیے پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آج صرف پٹیشن واپسی کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے۔ آپ کی مرکزی درخواست 25 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ فریقین نے گزشتہ سماعت پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آئندہ سماعت پر وہ بھی ہوں گے۔ آپ کو اسی روز سن کر پٹیشن واپسی کا درخواست پر فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی۔ Not just limited to climate change, it's there in how we manage our districts at the local level. It's there in how I'm endeavoring to manage the Ministry of Energy, or how we conduct our foreign relations. So this, one of the recommendations, of course, was to have a tech-enabled Pakistan. Yes, indeed. But a profound rethinking is needed now that we have crossed 75 years of age, is how are we going to manage this country of 220 million Pakistanis? We have this residual colonial system that we carry on. I'm still amazed that I get paper files, dozens of them every day, on subjects important and not so important and trivial, on which I have to spend my time. So the first, of course, observation, which is not in my speech that was given to me by the Ministry of Energy, is, of course, we have to think about, we as elected representatives have to think about, is how do we manage the country going forward at every level of governance. There was this recommendation here for strong local government.
We've never had it. Let's have it. But of course, the scope of experimentation in society is real but limited. You cannot have too many experiments. And we've had too many experiments. So we just have to look at it with fresh eyes. And my hope and expectation is that a new generation of Pakistani men and women will see this society with fresh eyes and guide us. That this model of governance is closer to the genius of our people. Because now we have a very good idea of what not to do. So this is a general level observation before I talk a little bit about climate change and energy. So the first order of business should be a serious rethink on improving the capacity of the state to deliver the recommendations that were just presented to us. The thing to note about the flood of 2022, ladies and gentlemen, that this was a unique event, not in size but in nature. This was not a riverine flood. This time the flood came from the sky. And now it's very clear that it was due to climate change. And what climate change did in 2022? Climate change has been doing this for many years, which is to increase the intensity of events, climate events. So rain is more intense, heat is more intense, cold is more intense, but for a shorter period. So patterns are changing. But in 2022, the challenge is that in certain areas, particularly in the middle of the country, so North Sindh, Eastern Balochistan, South Punjab, the rainfall was anywhere from 500 to 700% higher than average. So those areas which usually are water scarce, and their natural development has been to conserve water. So these are areas who want to keep water in if they have some. And suddenly this massive rain falls from the sky. So the same natural structures or barriers that people had put around their agricultural lands to conserve water became a pond of water. And in many areas, we are unable to still drain it out, because draining it out is not a natural process. These are areas which are far away from the river and don't naturally drain into it. So it's, again, it's a tremendous challenge. I was involved in it, first in order to ensure that electricity supplies were restored quickly in these flooded areas. And by grace of Almighty, we were able to achieve that. Very rapid restoration of electricity in these areas. But again, I'll just share an anecdote with you and you can draw your own conclusions. That there was this review meeting of flood relief, and Chief Minister Singh says that in certain areas, although there is electricity, but we need proper electricity, full voltage electricity, in order to run our pumps. So I had to go, I visited that section of Sindh to restore that grid. So the pumps, very large size pumps, dozens of them in like 10 kilometers apart, that were used to actually pump water
from underground to provide agriculture. We use them to drain water out. On all kinds of issues or other, there are distributional issues of, from whose land the water will cross. But 2022 was a unique event in Pakistan's history in which usually what happens was river is here, it floods, and then when the water in the river recedes, the same water comes back naturally in and it's drained out. Here we are having to drain it out through electricity, through pumps, which is extremely expensive and requires tremendous resources. Not only in terms of finances, but also, of course, technical resources and the availability of electricity. So this is a difficult challenge, and I am not sure we are prepared for it if it happens again in 2023. So it's a new endeavor that has opened up and a challenge that we have to cross. The larger point is that we have to be prepared for many such events. Because a corollary of this, flood in northern Sindh, East Balochistan, South Punjab is that in these areas where there is less rain, there was a massive rain. But what went unremarked, and something for this very distinguished audience to consider, we have not noticed it, that the usual areas of rain did not receive enough rain. So the areas which feed our rivers, particularly Chenab and Jhelum, there was not enough rain this year. वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2022 के सैलाब की मिसाल नहीं मिलती, ऐसा सैलाब पहले कभी नहीं आया। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबशना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के लिए दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान अपना बयान जमा कराना चाहते हैं, मगर दफ्तर ने इमरान खान के बायोमेट्रिक न होने पर एतराज़ आयद किया है। दफ्तर ने बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को ज़ाती हैसियत में आने को कहा है। इमरान खान कौमी असम्बली की नशस्त से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हमारा एतराज़ अदालत की समाअत के दायरे कार पर भी है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बायोमेट्रिक की सहूलत तो हर जगह मौजूद है, कहीं से भी कराया जा सकता है। सलमान अकरम राजा ने इब्तदाई बयान दाखिल कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने दरख्वास्त कबूल करते हुए समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दायरे इख्तियार पर फैसला महफूज कर लिया है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मंजूर कर ली गईं। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए। कुवैत में पाकिस्तानी सफीर मलिक मोहम्मद फारूक की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी ताजरों का इजलास हुआ, जिसमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे कुवैत और पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सफीर ने कहा कि इस पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम दोनों ममालिक के तिजारती मरासिम को मजीद बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इजलास में शरीक ताजरों ने इस नुमाइश में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया और अपने स्पॉन्सर्स के हमरा पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, ठट्ठा में बारिश से तबाह होने वाली गुलाब की फसल दोबारा तैयार हो चुकी है और गुलाब के फूलों की तरसील पूरे मुल्क में फिर से शुरू हो चुकी है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा मिर्जा हसन बेग से। जी हसन। खुशी हो या गम, फूलों के बादशाह गुलाब को हर जगह याद किया जाता है। ठट्ठा में बगड़ मोरी के करीब गुलाब का बहुत बड़ा बाग है, जहाँ से न सिर्फ ठट्ठा शहर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची, हैदराबाद और सिंध के दूसरे इलाकों में ये गुलाब जो है इसकी तरसील होती है और ये गुलाब का कारोबार जो है बहुत ही आला पैमाने पर जो है वो होता है।
लेकिन हालिया बरसात में इस गुलाब के फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। 3 माह तक ये फसल ना हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ के मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। आज ये ठट्टा का गुलाब पूरे सिंध में मशहूर था, ख़ासतौर पर बगाड़ मोरी का जो गुलाब पूरे सिंध में जाता था। हालिया बारिशों के बाद जो है अब काफ़ी नुकसान हुए थे, और अब जो 3 महीने बाद गुलाब की जो काश्तकारी हुई है काफ़ी फ़ायदेमंद हुई है। अभी इसका दोबारा जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। गुलाब लगाने वाले जो काश्तकार हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बरसात की वजह से 3 महीने बरसात थी, उसकी वजह से हमारा यहाँ नुकसान हुआ था। अभी जो है शुक्र है अभी ठीक हुआ है। मजदूरों का कहना है कि 3 माह के बाद अब 2 गुलाब की फसल जो है, पानी सूख गया है, गुलाब की फसल दोबारा हो गई है, और जो है हमारे हालात सही हुए हैं। अभी गुलाब जो है सुबह सवेरे गाड़ियों में डालकर हम दूसरे शहरों में बेचते हैं। गुलाब न सिर्फ फूलों का बादशाह है बल्कि घरों में भी एक रौनक पैदा करता है। जी नाज़रीन, मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। दिलकश और सुरीली आवाज रखने वाली गुलकारा महनाज बेगम ने 1958 में कराची में आंख खोली। महनाज बेगम ने रेडियो पाकिस्तान से गुलकारी का आगाज किया, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम नगमाजार के जरिए आवाम में बेहद मकबूल हुई। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम। बदलते मौसम की खबर नहीं है, मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में कहीं कहीं पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में भी बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे आज कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे अस्तोर की, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -12, लेह में भी -12। इसके साथ साथ स्कर्दू की अगर हम बात करें वहां पर भी कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड, कालाम में -10 और गोपस में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सजावी, ज़ियारत और जोथीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सजावी से हमारे नुमाइंदे ख्याल मोहम्मद दुबड़ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्याल मोहम्मद से मजीद तफसीलात जानेंगे। ख्याल, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल है? वादी ज़ियारत और सिंजावी में भी बर्फबारी का सिलसिला कल से ही वक्फे से जारी है, जिसके बायस वादी ज़ियारत की सनोबर के दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिए और ज़ियारत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, जबकि मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद ज़ियारत उमड़ आया है और ज़ियारत की खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। बर्फबारी के बायस गैस प्रेशर में कमी की वजह से भी ज़ियारत की हवाओं को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बायस सिंजावी, अरनाई, सिंजावी, लोरलाई, दुकी, अरनाई, कोयटा को मिलाने वाले तमाम शहरों पर सफ़र करने वाले आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PDMA ने भी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जबकि सड़ई के मकाम पर अब तक 11 इंच से ज्यादा बर्फबारी पड़ चुकी है। सिंजावी की मुतादिद इलाकों में 3 से 7 इंच तक बर्फबारी पड़ चुकी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशेंगोई की है। और मगरब से आने वाली हवाओं की वजह से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसके बायस इन इलाकों में वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई से। मीर सलाम, आगाह कीजिएगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, जिसमें कोयटा, ज़ियारत, खानोजी, कलात और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई सर्द हो गया। महकमा PDMA ने इस हवाले से सिविल इंतजामिया के साथ पेशगी इंतजाम कर रखे थे और भरपूर अंदाज में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है।
اور اسکردو سمیت بلتستان ڈویژن میں سردی کی شدت میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ اسکردو شہر میں دن کا کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بالائی علاقوں میں آج درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہونے اور پانی نلکوں میں جم جانے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔